Hello everyone, this is Vandana Kulshrestha from English Classroom Tutor. Guys, if you haven't subscribed this channel, so kindly subscribe and share it. Okay? Now, today I'm going to start a future perfect continuous tense. As you know, we have completed all the 8 tenses including present and past, and after that future के भी हमने we have completed 3 tenses. This is the last tense in tense series. So future perfect continuous, it's a very advanced tense because this tense is not in daily use. ये अभी इतना ज़्यादा in use नहीं है. All right. So this is future perfect continuous. Now see, future, it tells about the future and it's continuous. Continuous means when work is going on continuously. Means future means the work, that is the action, ठीक है, action will take place in future. This is simple future tense and this is continuous. Okay, the action will be going on continuously. Something will be happening continuously. So all these 2 words, you know what are these, but this is perfect. Perfect means completion, होना. तो now see, in this tense, अब continuous है तो रहा रहे तो आएगा ही. ओके, तो रहा है, रहे होंगे. But one more is this, say. इसमें हम we are using say also. Say means say रहा होगा, say रहे होंगे, क्योंकि say refers to the time, वो टाइम को रेफर कर रहा है. ठीक है, तो say का यूज हम यहाँ टाइम के लिए कर रहे हैं. ओके, टाइम मार्कर है यहाँ पर. सपोज अगर मैं यहाँ पे इस चीज को, टाइम को और से को यहाँ अगर व्हेन वी रिमूव दिस, तो क्या होगा, हम कल सुबह अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे. तो इट्स अ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. ओके, बट व्हेन वी ऐड टाइम and time marker, so this is called future perfect continuous tense. Okay, so this is the difference between future continuous and future perfect continuous. दोनों ही tense में वर्क continuously हो रहा है, but here we are talking about the time also. Okay, time को भी हम इसमें use कर रहे हैं. So this is called future perfect continuous tense. Now see the structure of the affirmative. Subject will, मैंने as I earlier I told you that shall is not in use nowadays, but you can write, क्योंकि ग्रामर में है तो हम उसको लिख सकते हैं और केवल I और V के साथ ही हम उसको यूज करते हैं. तो subject will have been. अब आपको इसमें केवल एक चीज याद रखनी है, will have been and continuous है तो obviously verb plus ing होगा. ठीक है, तो will have been and continuous है तो verb ing. This is the main thing. You have to always remember this. तो हम कल सुबह, ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव था. ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है ये. ऑल राइट. तो अगर हम इस चीज को ऐसे समझें कि कोई भी वर्क हमने, जैसे मैंने एक बार टाइम लाइन पे आपको एक प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एक टाइम लाइन है लाइक दिस. तो दिस इज नाउ, ठीक है, दिस इज फ्यूचर एंड दिस इज पास्ट. ऑल राइट. कोई यहाँ पे वर्क 10 years से कर रहा है. ऑल राइट, अभी वो यहां पर है, जुलाई. ऑल राइट, और यहां फ्यूचर आ गया यहां पर. ठीक है, 10 वर्ड से ऑलरेडी कर रहा है और फिर यहां पे क्या हो गया और यहां एक्शन आ गया, विल बी वर्किंग. ऑल राइट, यहां वो नेक्स्ट जुलाई आ गया, नेक्स्ट जुलाई. अब
if any person is working past, क्योंकि this line is now, okay, so before this is called past and before that, इसके बाद जो हमने ये लिखा है ये फ्यूचर है। तो मान लीजिए 10 ईयर्स से यहाँ वर्क कर रहा है और अब जुलाई है एट प्रेजेंट, ठीक है, और वो नेक्स्ट जुलाई तक वहां काम कर रहा है, तो कितने ईयर हो गए 10, और ये इस जुलाई से नेक्स्ट जुलाई तक 1 मीन्स 11। तो कैसे हम बनाएंगे, मान लो हमने एक सब्जेक्ट का नेम दे दिया प्रिया, ओके, तो प्रिया विल हैव बीन वर्किंग, ठीक है, अब यहाँ जुलाई से कर रही होगी, नेक्स्ट जुलाई से, तो बाय द नेक्स्ट जुलाई प्रिया विल हैव बीन वर्किंग देयर, ठीक है, फॉर 11 ईयर्स। तो हमने तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में यहाँ पे आपने ये देखा कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हमें क्या पता लगा कि हाउ लॉन्ग समथिंग विल बी हैपनिंग, यानी कि कितने लंबे टाइम तक ड्यूरेशन में कोई वर्क हो रहा है इन फ्यूचर। नाउ एग्जाम्पल, हम कल सुबह 10 बजे अंग्रेजी पढ़ रहे होंगे, तो सब्जेक्ट इज वी, you can use shall also, we will, now have been, अब वर्ब क्या हो रहा है, पढ़ना, will be studying, अब what, we will have been studying, object English, अब since for use, ठीक है, in my previous video मैंने since for को I have explained in detail, if you want to see तो you can see that video also। तो since we use for the particular time means point of time, like days of week, ठीक है, वीक नेम मतलब हमारे डेज ऑफ वीक है, मंथ्स नेम है, ईयर है, टाइम बाय क्लॉक है, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ठीक है, इन सब के साथ हम सिंस का यूज करते हैं। और फॉर इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम, एक ड्यूरेशन के लिए यूज किया जाता है, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 5 आवर्स, फॉर 3 मंथ्स, तो इसके लिए हम फॉर का यूज करते हैं। तो टाइम यहाँ क्या है 10 बजे मीन्स टाइम बाय क्लॉक, तो व्हाट विल यू यूज हियर, सिंस, तो वी विल हैव बीन स्टडिंग इंग्लिश सिंस 10 o'clock, ओके, तो अब ये देखिए सिंस आ गया और टाइम क्या आ गया 10 o'clock। So this is the example of affirmative sentence. We will have been studying English since 10 o'clock. All right. Now negative sentence. Subject will, shall मैंने लिखा नहीं है, not have been, verbing, object since for line। Example देखते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम 5 घंटे से अभ्यास नहीं कर रही होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट इंडियन टीम, क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट टीम have not been practicing now time since और for 5 घंटे से, इट्स अ ड्यूरेशन, तो प्रैक्टिसिंग फॉर विल, ये हो गया इंडियन क्रिकेट टीम विल नॉट नाउ हैव, जस्ट अ मिनट, will not have been practicing for 5 hours, 5
hours. Okay. Indian cricket team will not have been practicing for 5 hours. Now next is interrogative question. तो फर्स्ट हमारा फॉर्मूला किसका है, जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो विल सब्जेक्ट हैव बीन वर्बिंग ऑब्जेक्ट सिंस फॉर प्लस टाइम. तो इसके हमने एग्जाम्पल ये लिखा है, क्या वह जुलाई से इस कारखाने में काम कर रहा होगा. तो क्या मीन्स हमें हेल्पिंग वर्ब से बनाना है इसको. तो विल ही, सब्जेक्ट आ गया, हैव, फिर बीन. अब वर्ब क्या हो रहा है इसमें, वर्किंग. अब क्या है, विल ही हैव बीन वर्किंग. अब काम करना एक साथ वर्किंग में ही आ गया ये, ठीक है. तो विल ही हैव बीन वर्किंग. अब टाइम क्या दिया हुआ है, जुलाई से. तो विल ही हैव बीन वर्किंग, यहां जुलाई से है, तो क्या वह जुलाई से इस कारखाने में काम कर रहा होगा. तो विल ही हैव बीन वर्किंग in this factory since July. ये कंप्लीट हो गया हमारा. नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड. इस वर्ष के अंत तक वह 10 वर्षों से कंप्यूटर सीख रही होगी. तो WH वर्ड, तो सबसे पहले कहाँ, तो वी हैव टू फॉलो दिस. हमें इसको फॉलो करना है कि वह 10 वर्ष से कहाँ वर्क कर रही होगी या कहाँ कंप्यूटर सीख रही होगी. तो यहाँ सबसे पहले WH वर्ड वेयर, उसके बाद विल, सब्जेक्ट शी. अब इसमें आप एक चीज देखिए, ये मैं आपको बता देती हूँ अभी, कि मैंने यह लिखा है इस वर्ष के अंत तक. तो इसमें आप ये देखेंगे कि इस वर्ष के अंत तक, मतलब अगर इस तरह का कोई भी सेंटेंस दिया है तो उसे हम सबसे पहले लगाएंगे. तो बाय द एंड ऑफ, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ये हम पहले ही लगा देंगे. अब सेंटेंस हमारा कहां से शुरू होगा, यहां से. तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ वेयर will she have. अब she के बाद हमारा सब्जेक्ट तक आ गया, ये देखिए यहां तक. फिर have been, वर्ब क्या है, लर्निंग कंप्यूटर, लर्निंग कंप्यूटर. लर्निंग कंप्यूटर. अब टाइम क्या दिया है, फॉर 10 years, फॉर 10 years, पुट क्वेश्चन मार्क. तो दिस इज द इंटेरोगेटिव. ओके, इंटेरोगेटिव में मैंने इंट्रोनेगेटिव का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है बिकॉज आई एम नॉट हैविंग स्पेस. बस मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि हम इसी को चेंज करके देख लेते हैं कि हम इसमें ही मर्ज कर सकते हैं नॉट को. तो won't he have been working in this factory since July, ऐसे ही ये वाला है. तो इसको भी by the end of this month where won't she have been learning computer for 10 years. Okay, so this is the future perfect continuous tense. I hope you all understood. So that's all. Thank you.